آپ کا بچہ جو ہے نا وہ حافظ بن گیا، یہ ساری دنیا کی ڈگریاں جو ہے نا یہ ادھر دنیا میں رہ جائیں گی، لیکن یہ جو حافظ ہونے کی جو ڈگری ہے نا یہ آپ کے لیے بھی فائدے کا اور اس بچے کے لیے بھی فائدے کا اور آپ کے ساری خاندان کے لیے فائدے کا، سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ کے سر میں قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، بہت مہنگا قسم کا تاج، آپ کی وائف کا آپ کے سر میں ایک تاج پہنایا جائے گا، سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ کا بچہ جو ہے نا بہت مختصر سے ٹائم میں، شارٹ ٹائم میں یہ قرآن کا حافظ بن گیا، سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد یہ والا بچہ بھی جو ہے نا قرآن کا حافظ بن گیا اس سال، یہ جو ہے نا ارشد جو ہے، اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، شاہد حسین جو ہے نا یہ بھی قرآن کا حافظ بن گیا اس سال میں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا چھوٹا کلاس ہے لیکن اللہ پاک ہر سال میں 3-4 ہمارے حافظ بناتے ہیں۔ ہم نے آپ کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، آپ نے دیکھا ہم نے ان کو کوئی نہیں مارا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ آج بھی صبح مجھے ایک رپورٹ آیا کہ یہ جو ہے کیا نام ہے چھپ چھپائی میں مدرسوں کے پیچھے جاتے، چھاپے مارتے، دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مارتے، مدرسوں میں کوئی بچوں کو نہیں مارتے ہیں، سمجھ میں آئی؟ ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں، یا ہمیں اپنے والدین کی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں مدرسے کے بارے میں، سمجھ میں آئی؟ حکومت ویسے بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا مدارس کو، لیکن مدارس جو ہے کیا نام ہے مانگ مانگ کر ان بچوں کو حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، پھر یہی حافظ اور عالم جو ہے جنازے پڑھاتے ہیں، پھر جو ہے نا اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے جمعے پڑھاتے ہیں، یعنی نکاح پڑھاتے ہیں، دنیا کے ہر مشکل میں جو ہے یہ قرآن کے حافظ عالم کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوتا، لیکن پروپیگنڈا روز 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 ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو اس پروپیگنڈے کے دنیا میں، اس مشکلات کی دنیا میں علماء اس مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا کیا نام ہے قرآن کے حافظ یعنی ہزاروں کے لاکھوں کے تعداد میں بناتے ہیں۔ آپ نے ہمیں کوئی فیس نہیں دیا کوئی فیس نہیں، فیس دیا نا، ہم نے ان کو مشکل میں ان کے لیے دوائی بھی دیا، ان کے لیے کپڑے بھی دیے، اور ان کے لیے کھانا پینا بھی مہیا، ان کے لیے ہاسٹل بھی، یہ سارا کچھ کر کے ہم نے آپ کے بچے کو آج حافظ بنا کر آپ کے حوالے کیا۔ اگلی جو بات میں عرض کروں نا، ابھی یہ جو بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم جلسہ کریں گے، سمجھ میں آئے گی؟ ہم جلسہ کریں گے، اس حوالے میں سے جو ہے نا میری جو اپنی طبیعت ہے نا، اب وہ بات مولوی صاحب آپ کو میرے کو بعد میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری بات ان کو بعد میں سمجھانا ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو کہ جو جلسے کے مطلب کریں گے، پھر لوگ اکٹھا کریں گے، اس کے نہ کرنے میں اس کے حق میں نہیں ہے، یہ جلسے کرنے میں، شوشہ کرنے میں، باہر سے خطیب منگانے میں، اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس حق میں نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ میں خود جب عالم بنا نا تو میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، لیکن میرے ساتھی جو میرے ساتھ فارغ ہو گئے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کے جھنڈے بنائے اور گاڑیاں لے کر آئے، بڑے جلوس نکالے، ختم خیرات ہوئے، سمجھ میں آئی؟ لیکن وہ لوگ آج اپنے گھروں میں جو ہے کیا نام ہے اپنے بچوں کے لیے روٹی کما رہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن جب سے میں اللہ کے فضل سے فارغ ہوا ایک دن بھی میرا مس نہیں ہوا، اور اللہ نے مجھ سے دین کا کام لے لیا، سمجھ میں آئے گی؟ ہر اعتبار سے لیا، لیکن میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، اور نہ میرے گھر والوں کو پتہ تھا کہ عالم بن کر آیا ہے، سمجھ میں آئے گی؟ لیکن میں نے اخلاص کے ساتھ مطلب اس چیز کا قدر کیا، مطلب اپنے عالم ہونے کا قدر کیا، اپنے ویلیو مقام کو پہچانا، میں جو ہے نا اس چیز کو میں نے اپنے لیے روزگار نہیں سمجھا، سمجھ میں آئے گی؟ میں نے مدرسے کے پیسوں کو یعنی مسجد کے پیسوں کو اپنا مطلب خزانہ نہیں سمجھا، اس کو جو جس کا مستحق تھا اس کو دیا، اور اس کام کو میں نے اس کی نظریات کے مطابق یعنی میں نے محنت کے ساتھ یہ کام کیا، تو اللہ نے مجھ سے مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، دفاعی کام کروائے، صرف میرے اخلاص کی وجہ سے، سمجھ میں آئے گی؟ تو اب جلسہ کروائے اور بڑا پگڑوں بنوائے، سمجھ میں آئے گی؟ اور اندر سے اخلاص نہ ہو، محنت نہ ہو اور نظریات نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے کیا نا وہ جلسہ کسی کام کا نہیں ہے، سمجھ میں آئے گی؟ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے شوشہ کرتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، بڑے بڑے پگڑیاں پہنواتے ہیں، بڑے پلے خان مولویوں کو بلاتے ہیں، لیکن آگے سے جو ہے کیا نام ہے جن کے پگڑیاں پہناتے کر کے ان کے کرتوت کچھ اور نکل آتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مطلب پگڑی پہنائے نہ پہنائے، مطلب جو ہے نا جلسہ کرے نہ کرے، لیکن ایک عالم ان اللہ اللہ کے ہاں بن گیا، ایک حافظ ان اللہ اللہ کے ہاں بن گیا، اس نے اپنے مقام کو پہچان لیا کہ میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، میں اپنے اس مشن کا قدر کروں گا، اپنے اس عہدے کا قدر کروں گا، اپنے اس سرٹیفکیٹ کا قدر کروں گا، آگے جو ہے نا میں قرآن کو بھولنا نہیں دوں گا، اس کے جو ضروریات ہیں، اس کی جو خدمات ہیں وہ میں کروں گا،
तो जलसा जो है क्या नाम है उधर ही रह जाएगा, वो जज्बात और नज़रियात उसको आगे लेके जाएगा। समझ में? अब ये है कि मतलब जलसा भी कर ले, पगड़ी भी बना दे, हार भी पहना दे, कल को जाकर वो जो है ना इसका कदर ही न करें, इस मिशन के वो चलाया नहीं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि देखो कि मैं जब आलिम बन कर आया, मेरे साथियों ने जश्न जुलूस किया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अल्लाह ने मुझसे काम दिया, मेरे अंदर खिलास था, मेहनत था। समझ में आई? अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो इस रास्ते में मेहनत करेंगे उनके लिए आगे अल्लाह रास्ता करेगा। दूसरी बात मैं जो बात बताऊँ कि मैं ये जो लेकर आते हैं, जो मौलवी लेकर आते हैं यानी पगड़ी पिलवाने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए, वो लालिश से खाली नहीं है। समझ में आई? सब उनके नखरे होते हैं। अब जितने भी हमने इससे पहले लाए, उनकी रोटियों के नखरे, इधर पार्क यहाँ छाड़ में लाया एक मौलवी साहब को, तो बड़ा इखलास के साथ, इनको पता है, उस्मान साहब को पता है। समझ में आई? आप खुद देखते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला, कहने लगे ये खाना तो जानवर और गधे भी नहीं खाते, तुमने मेरे सामने पेश किया। जबकि वो मोहल्ले वालों ने बड़ा अच्छा खाना उसके लिए बना के पेश किया, लेकिन उसने बोला ये तो हमारे गधे भी नहीं खाते, और वो अपनी मक्खी बैठना नहीं दे रहा था, ना कितना चढ़ा हुआ था उसमें। समझ में आया जी? उसके बाद हमने एक पीर साहब को बुलाया, तो उसकी गाड़ी उधर दामनकों में ख़राब हो गई। समझ में आया? दामनकों में ख़राब हो गई। उसको मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा, अपनी गाड़ी लेकर आऊँगा तो तुम्हें लेकर आऊँगा। उसने कहा हमारे पास गाड़ी है ना हो, बावजूद उसकी ये कहने कि हमारे पास गाड़ी है ना हो, फिर उसके बाद वो गाड़ी उसकी दामनकों में ख़राब हो गई। उसके बाद जो है क्या नाम है, उसने वहाँ से कहा कि गाड़ी ख़राब हो गई। तो हमने यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर जब चले, उधर जो है क्या नाम है ऊपर टाप पे गए, तो वो कैसी और गाड़ी में तो उधर टाप तक आया, और मेरे ख्याल से उसको 100 कदम चला होगा। तो उसका सांस जो है ना क्या नाम, उसका सांस और गुस्से में था कि आपने हमें तकलीफ दिया, हमें पैदल चलना पड़ा, और पसीने में डूबा हुआ बड़ा जो है ना गुस्सा कर रहा था। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत, लोगों को बाहर से लाए और गुस्से भी अपने ऊपर करवाए, और अब ये हमारी इसमें कोई गलती भी नहीं। फिर भी मैंने कहा चलो यार खैर कोई बात नहीं, ले आया। लेकिन उस दिन फैसला किया कि हमारे काम गलत है। समझ में? अभी मौलाना वो जो हमने आखिर में जलसा किया था, वो एक बुजुर्ग को लेकर आया था, जिसको यहाँ बहुत सारे मतलब फरिश्ता समझ रहे थे। वो जो आखिर में इसने जलसा किया यहाँ पर, अब उस वक्त तो उसने अपनी कोई हाजत जाहिर नहीं की, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे कॉल किया कि हमने एक बेटा बनाया हुआ है, और उसकी जो है क्या नाम है शादी है, तो आपने उसमें ताउन करना है। शायद आप भी उस ताउन को देने के लिए मेरे साथ गए थे। मेरी मजबूरी बन गई, मैंने अपने जेब में देखा कुछ भी नहीं, अब मदरसे के ऊपर कोई इतना फंड नहीं। फिर मैंने किसी दोस्त को कॉल किया कि मैंने कहा यार एक बंदा है और उसकी इस तरह का मसला है, तो उसके लिए कुछ ताउन भेजो। उस बेचारे ने 30,000 रुपये भेजा। ये नुज़मान साहब को साथ लिया, एक और बंदा भी मेरे साथ था। चलते चलते उसके इलाके में जाकर हमने उसको वो पैसे देकर आ गए। समझ में आया जी? तो ये जो आने वाले होते हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं आते जो हमें यहाँ तकरीरें सुनाएंगे, हमारे सरों के ऊपर वो कपड़े फेरते रहेंगे, सब लालची। मतलब फिर भी इससे पहले भी दूसरी जगहों में भी, ये गोकीना का अंदर कश्मीर के अंदर हमने ऐसे मुकर्रर देखे, खतीब देखे। मैं किसी की गैबत नहीं कर रहा, ठीक है ना जी, मैं जो आंखों देखा हाल बता रहा हूँ ताकि हम इस मुसीबत से निकले, ये बिदात से निकले, ठीक है। वो आए, तकरीरें किए, अब जमात खड़ी हो रही, लेकिन उन्होंने जमात के साथ नमाज़ें पढ़ी, गाड़ी में बैठे और टूट। समझ में आया जी? खतीब जो लोगों को अभी तकरीर कर रहे थे, समझ में आया जी? खतीब जो लोगों को अभी तकरीर कर रहे हैं, अब जमात इधर मस्जिद में खड़ी वही तकरीर किया, गाड़ी में बैठा, हमारे पास टाइम नहीं, हम अगली मस्जिद वहाँ जाकर कमाने के लिए जाना है। समझ में आया? इसलिए जो आने वाले होते हैं उनके ऊपर मैं मुतमईन नहीं होता, ठीक है जी। अगली बात सुनो, अगली बात ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ हम लोग खर्च जमा करते हैं लोगों को, ये बेचारे उससे 10,000 रुपये निकालते हैं, इससे 10,000 निकालते हैं, उससे 10,000 निकालते हैं, उससे भी ये जो खाना पीना पूरा नहीं होता, ठीक है ना। अब फिर मदरसे की तरफ से देना पड़ेगा। मदरसे इतना बड़ा पैसा तो मदरसे के पास भी नहीं है। समझ में आए? यहाँ गांव देहात में, और गांव की तरफ से 10 रुपये नहीं होंगे, कोई भी 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होगा। खाने के लिए सब आ जाएंगे पूरे गाँव के, समझ में आए? तो मैं जहाँ कहता हूँ कि खाने के लिए लोगों को लाएंगे, इधर जमा कराएंगे, जो बातें हम तकरीर पर सुनाएंगे उनके सामने उन बातों की मिसाल ऐसा जैसे भैंस के सामने बीम बजाना है। सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो भाई? हाँ, इधर जो लोगों को हम लाएंगे खाने के लिए आएंगे, और हमने इधर इफ्तारी दिया लेंटर के ऊपर, लेंटर में जो ना सुई रखने की जगह नहीं थी, हाँ, इफ्तारी खा गए सारे, पूरा गांव आ गया, पूरा लेंटर बैठने को आए थे, इतने लोग आए थे। जब नमाज का टाइम हो गया तो सारे कोई इधर निकला, कोई उधर निकला, समझ में आया जी?
और इधर एक साहब भी नमाज के लिए नहीं हुए। तो लोगों को हम इकट्ठा करवाएं खाने के लिए, इन गरीबों से भी निकाले, मदरसे से भी दे दें, हम जेब से तो दे नहीं सकते, फिर जो है ना मतलब इधर मोहल्ले वाले दे भी ना सके, और फिर जो है क्या नाम है हम खा भी दे, और वो हम जो तकरीरें उनको सुनाएंगे, बातें करेंगे, वो ऐसी बस मुरझाए हुए मुँह बना के बैठ जाएंगे कि पग कब मौलवी चुप हो जाएगा, समझ में आ जी। और जब चुप हो गया तो उसके बाद ऐसा ही हुआ जैसे भैंस के सामने बीन बजाना, अगले नमाज में वो वैसे भी नहीं आए। इसलिए इस्लाम ने शोशा को ख़त्म किया। इस्लाम में शोशा नहीं है, इस्लाम में फूफा नहीं है, इस्लाम में मेहनत है, इस्लाम में मेहनत है। बस इनफरादी तौर पर आपके ऊपर मेहनत करो, इनके ऊपर मेहनत करो, इनके ऊपर मैंने मेहनत किया है, इनके पीछे गया नहीं कहता है आपके घर में, ये नहीं आते थे मस्जिद में, समझ में आइए, कि उशूआत की बिना पर नहीं आते थे। मैं यहाँ से बंदे लेके गया मस्जिद में, इनके घर में जाके मेहनत किया, समाजत किया, और मज़ाहर ने काम नहीं आते, फिर इसने उसको बोला चुप हो जाओ उस्ताद बात कर रहा है, समझ में आया जी, फिर मनवाया ले आया, ये नहीं आते थे, समझ में आया जी। मैं गया इनके कॉलेज में, समझ में आया जी, जाकर इनको समझाया, बिठाया, इन बेचारों ने मेरे चाय पिलाया, वहाँ पर बिठाया, इकराम किया, और मैंने दर्द दिल से इनके लिए नमाज की दावत दी, समझ में आया जी। कोई मैंने मसलक की दावत नहीं दी इनको, सिर्फ नमाज की दावत दी, अल्लाह ने इनको लेकर आया। इस तरह हज़ारों लोग मेरे पास दम के लिए आते हैं, इनफरादी मेहनत करता हूँ। तो बच्चे मैंने आपको बताया कि आपके सर पर हम एक मर्द कपड़ा बांध दें, और अभी मैं यकीन जाने ये जो है ना, ये मेरा बच्चा कह रहा था, और ये भी कह रहा था कि हमारा जलसा होना चाहिए, हाँ, लेकिन अब मैं अभी भी ये बात इनसे कह रहा था, जो मेरा मंशा है ना, जो मेरी तबीयत है कि मेरे बच्चे ऐसा होना चाहिए, ये दोनों मेरे बच्चे उस तरह नहीं है, हकीकत में नहीं है। मैं अभी भी ये सोच रहा था कि मैंने गलती किया कि मैंने इनको बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाया, किसी मदरसे में दूर ले जाकर भेज देता ना तो परदेसी की ज़िंदगी काटते, समझ में आया जी, हमारी तरह फिर इनको एहसास होता, समझ में आया जी। लेकिन वो कपड़े तो इनके सर पर बंधवाया मैंने, बाहर से बंदे मंगा के, खतीब मंगा के, लेकिन इनको नज़रियात नहीं बनेंगे। मैं रोज़ाना इनको झगड़ मगड़ के इनको मस्जिद में लेकर आता हूँ, समझ में आया। तो ये अर्ज़ कर रहा था कि अब ये सारी बातें मैंने इसलिए की है कि ये जो हम जलसा करेंगे, समझ में आया जी, जो मोहल्ले के लोगों को बुलाएंगे, खाएंगे, जो बताएंगे टस समझ उनको नहीं हो, तो वो भी फायदा नहीं। आपके ऊपर एक मन कपड़ा बांध देंगे, लेकिन आपके अपने नज़रियात अंदर से मुर्दे हैं, समझ में आया, तो वो कपड़ा बांधना आप किसी काम में नहीं है, समझ में। उसके बाद ये जो क्या नाम है, अगली बात कौन सी बताए, वो जो लोग आएंगे हमें पकड़ा बांधने के लिए, कि वो भी कोई जो है क्या नाम साहबा नहीं आएंगे, या अल्लाह के रसूल कोई नहीं आएगा, उनकी करतूतें मैं जानता हूँ, समझ में आया जी। इसलिए ये सारा ड्रामा होती है, ठीक है जी। ये जो उस्ताद सादगी में तुम्हारे लिए दुआ देगा, बोलना, समझ में आया जी। हम तो जो कुछ हमसे हो सका हम तुम्हारे साथ मुबारकबादी दे देंगे, इसी को इत्तफा करेंगे, तकल्लुफ़ात से हम बचेंगे ना, बिदात से हम बचेंगे, तो फिर इसी में अल्लाह ताला खैर बरकत डालेगा, जैसे कि मेरे ऊपर अल्लाह ने खैर वो बरकत डाली। सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी मिसाल दिया आपने, मैंने अपना कोई जलसा नहीं किया। अगली सबसे बड़ी बात बताऊँ कि मेरी शादी में भी कोई मतलब जो है ना, वो कोई जाने वाले क्या होते हैं, बाराती नहीं गए, समझ में आई। और न मैं जो है क्या ना अपने इलाके में था, मैं कराची में पढ़ रहा था मदरसे में। मेरी घरवाली को जब मेरे घर लाया गया, ठीक है, मेरी घरवाली को जब शादी करके रुखसती करके मेरे घर ला कर रखा गया, वलीमा हुआ, समझ में सुन्नत था, इसलिए मेरे वालिद साहब वलीमा किया, कोई बाराती नहीं गया, कोई दुल्हा उधर घर में नहीं, निकाह हमारा इजाब कबूल पहले हो चुका था। हाँ, मैं 6 महीने के बाद जब घर आया तो पता चला रास्ते में कि आप मेरी घरवाली को शादी करके लाया गया। अल्लाह ने मुझे उसमें बरकत दी, समझ में आई, बरकत दी। अल्लाह ने मुझे घर भी दिया, अल्लाह ने मुझे घर का अंदर जो सामान था वो भी दिया, समझ में आई। अल्लाह पाक ने जो है ना उस बीवी से मुझे 4 बेटे दिए, 2 बेटियाँ दिए, सारे दिन ही पढ़ रहा है, समझ में आई। तो अल्लाह ने उस शोशा से निकलने की वजह से मेरी ज़ात में बरकत दी, ठीक है जी। अब ये है कि बाकी सारे चले जाओ, समझ में आई। तो उसके बाद जो है क्या नाम है, अब बाकी होगा, लेकिन ये मैंने इस सारी तकलीफ का खुलासा ये है, अपना अंदर इखलास पैदा करना है, दीनदारी पैदा करना है, अपने अंदर कमाल पैदा करना है, तो वो आपका दस्तार भी है, आपका जो है ना शोशा भी है, सारा कुछ है। लेकिन आपने बहुत